الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السند المتصل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت هذا الحديث الشيخ نصير أحمد خان قال حدثني شيخ الإسلام حسين أحمد المدني قال حدثني محمود حسن المعروف شيخ الهند قال حدثني شيخ محمد قاسم النانوتي المعروف حجة الإسلام قال حدثني شيخ عبد الغني المجددي وبه قال حدثني شيخ محمد إسحاق الدهلوي وبه قال حدثني شيخ عبد العزيز الدهلوي وبه قال حدثني شيخ محمد أحمد المعروف شيخ ولي الله المحدث الدهلوي وبه قال حدثني شيخ محمد طاهر محمد بن إبراهيم المدني وبه قال حدثني شيخ إبراهيم القردي وبه قال حدثني شيخ أحمد القشلاوي وبه قال حدثني شيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس وبه قال حدثني شيخ شمس الدين الرملي وبه قال حدثني شيخ الإسلام زين الدين زكريا وبه قال حدثني شيخ شهاب الدين أحمد بن علي حجر الأسقلاني وبه قال حدثني شيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي وبه قال حدثني الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار وبه قال حدثني الشيخ أبو علي حسين بن مبارك وبه قال حدثني الشيخ أبو اللق عبد العوض بن عيسى بن شعيب وبه قال حدثني الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر بن محمد الداودي وبه قال حدثني الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرحسي وبه قال حدثني شيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الخربلي وبه قال حدثني شيخ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برقس بن الجعفي اليماني البخاري قال البخاري حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے ہمیں اپنے اس دین پر تحدید بالنعمہ کے طور پر یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے اس وقت اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے مدینہ المنورہ میں زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسلسل کے ساتھ ایک طریقے سے براہ راست سن لیا اور یہ
اس دین محمدی کی خوبصورتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے بندوں کی ایک جماعت محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کو واسطہ بالواسطہ اس امت کے آخری فرد تک پہنچا رہی ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی اور جتنے نبی آئے، ان نبیوں پر جو آسمان کی طرف سے کتابیں آئیں، وہ آسمانی کتابیں بھی ویسے محفوظ نہیں ہیں جیسے قرآن کریم یا حدیث مبارکہ محفوظ ہے۔ ان کتابوں کے اندر الفاظ کے اعتبار سے بھی تبدیلی آئی اور معنی کے اعتبار سے بھی تبدیلی آئی۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے اور امام الانبیاء کا خطاب ہے کہ آپ علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس کو علماء نے کہا وحی مطلوع، وہ تو حرف بحرف نقطوں کے ساتھ زبر زیر کے ساتھ بعینہ ہی محفوظ ہے، لیکن اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو بات اپنی زبان مبارک سے فرماتے تھے اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع۔ وہ الفاظ بھی بعینہ ہی آج کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، بلکہ کتابوں کے اندر مدارس میں زندگی گزارنے والے افراد پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اگر کسی بیان کرنے والے راوی کو یہ شک ہو گیا کہ یہاں لفظ پر تم تھا یا وہ تھا، عربی زبان کے اعتبار سے تکونو تھا یا یکونو تھا، وہ یہ کہہ دیتے ہیں، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں، تکونو تھا یا اکونو تھا یا یکونو تھا، جو بھی لفظ تھا وہ بیان کر دیا، اس کو چھپایا نہیں۔ پھر یہ وہ اقوال تھے جو الفاظ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن مراد یہ اللہ کی، جس کو قرآن نے بیان کیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سنیں، آپ جو کچھ فرماتے ہو، جو کچھ آپ کہتے ہو، وہ آپ کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ وہ من جانب اللہ آپ کے دل پر القاء کی ہوئی بات تھی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ کی خواہش والی بات نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی طرف سے وحی کی گئی، اور وحی وہ ہوتی تھی جو براہ راست حضرت جبریل علیہ السلام لایا کرتے تھے، اور اس کی کئی شکلیں ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی براہ راست ایک انسان کی شکل میں آتے تھے۔ عام طور پر جب حضرت جبریل کسی انسان کی شکل میں آتے تھے تو وہ انسان تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے علاوہ اور بھی صورتیں تھیں جن صورتوں میں قرآن لاتا تھا۔ اور دوسری بات جو آپ علیہ السلام کے دل پر القاء کر دی جاتی تھی وہ یہ احادیث مبارکہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے قرآن کریم کو پتھروں پر لکھا، ہڈیوں پر لکھا، پتوں پر لکھا، کاغذ چونکہ موجود نہ تھا، جو کچھ لکھنے کی چیز ان کو ملتی تھی ان چیزوں پر قرآن کریم کو لکھتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو اکٹھا کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے اور نسخے بنائے گئے، پوری دنیا کے اندر ان کو بھیجا گیا، ان کو پہنچایا گیا۔ اللہ کی شان یہ ہے ان نسخوں میں سے ایک نسخہ ایک بڑے زمانے تک
متحدہ ہندوستان کے اندر موجود رہا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جب یہ سارے ملک ایک تھے تو ہندوستان کی لائبریری کے اندر وہ قرآن موجود تھا، لیکن جب راتوں رات مسلمانوں کی محنت اور تگ و دو سے انگریز یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا تو اور چیزوں کے ساتھ وہ قرآن کریم بھی یہاں سے لے کر لندن چلے گئے۔ اس وقت وہ عالم موجود ہے جنہوں نے اس قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ فرماتے ہیں جب میں نے اس قرآن کو دیکھا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایک نگاہ اس قرآن کی طرف تھی، ایک نگاہ آسمان کی طرف تھی، اور میری زبان اور میرا دل یہ کہہ رہا تھا اے باری تعالیٰ تیرے شان کریمی یہ دیکھ لیے، تیری قدرت یہ دیکھ لیجئے۔ فرعون نے موسیٰ کو قتل کروانا چاہا تو فرعون کے گھر میں پلوایا۔ یہ سارے انگریز، سارے یہود، سارے نصارہ اس دین کو مٹانے کے در پر لگے۔ ہندوستان میں انہوں نے ہزاروں لاکھوں علماء کو سولی پر رکھایا، بلکہ ان کو ذبح کیا، بلکہ زندہ ان کو خنزیر کی کھالوں میں ڈال کر آگ لگا دی گئی، اور قرآن کریم کے ایک نہیں ہزاروں، سینکڑوں اور لاکھوں نسخوں کو شہید کر دیا تاکہ دین دنیا اور ہندوستان سے مٹ جائے۔ لیکن اے باری تعالیٰ تیری شان کریمی، تو نے ہی ان کو اس لائبریری کا نگراں بنایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن آج اس کی حفاظت کرنے پر ان کو لگا دیا ہے۔ یہ اس دین ایمان کی حقانیت ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے، یہ ہمارے نبی کی حقانیت ہے، ان حدیث مبارکہ کی حقانیت ہے۔ صحابہ نے اس کو لکھا، صحابہ نے حدیثوں کو نہیں لکھا بلکہ حدیثوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یاد کر لیا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چلا گیا، صدیق اکبر کا دور چلا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت دنیا سے جانے لگی، کچھ شہید ہونے لگے، کچھ دنیا سے بیماری کی وجہ سے چلے جانے لگے، یہ رفتار بڑھتی گئی۔ کچھ صحابہ کا خیال یہ ہوا کہ ان حدیثوں کو بھی لکھ لینا چاہیے، چنانچہ حدیثوں کو جو کچھ یاد تھا لکھنا شروع کر دیا۔ اور سب سے پہلے تابعین میں سے ہمارے امام آئے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، جن امام اعظم نعمان بن ثابت نے تقریباً 7 صحابہ سے بالمشافہ ملاقات کی ہے، لہذا ہم اپنے امام کو تابعی کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن زیادہ توجہ ان کی حدیث قرآن سے نکلنے والے مسائل کی طرف تھی، لہذا ان مسائل کا استعمال کرتے فقہ کو مدون کیا جاتا تھا، فقہ کو لکھا جاتا تھا۔ لیکن مسند امام اعظم یہ ان کے ہاتھ کی، ان کے قلم کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی محفوظ ہے، لیکن خدا کی شان ہے، اللہ جس کو بلند کرنا چاہے گا اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جس کو نیچا کرنا چاہے گا اس کو نیچا کر دے گا۔ امام اعظم یہ صحابی نہیں، تابعی تو ضرور ہے، کتاب لکھی لیکن وہ انہوں نے کھانا رہ گئی۔ اس کے بعد ان کے شاگرد آئے، امام ابو یوسف، امام محمد اور دیگر ان کے شاگرد آئے، ان شاگردوں کے آگے شاگرد بن گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شاگرد آگے بن گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے آگے شاگرد بن گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 3 بڑے اماموں کے استاد تھے ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 3 اماموں میں سے ایک امام نے حدیث کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے موطا مالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے، یہیں پر پلے، یہیں پر بڑے، یہیں پر علم حاصل کیا، مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے۔ زندگی میں صرف ایک حج کیا جو حج ان پر فرض تھا، اس کے علاوہ مدینہ سے باہر نہیں گئے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے میرا دل یہ چاہتا ہے میری موت مدینہ میں آ جائے، لہذا میں مدینہ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے موطا مالک لکھی، اور وہ حدیث کی کتابوں میں اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے گا سب سے بڑی کتاب ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی سنایا کہ میں نے اس بخاری کو سنا ہے
शेख नसीर अहमद खान से, उन्होंने शेख उल इस्लाम से, उन्हें आगे आगे चल कर या आखिर तक मैंने सब नसबनामा आपको सुना दिया। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इमाम मोहम्मद से या इमाम अबू यूसुफ से या जिधर किसी उस्ताद से, वो किसी और उस्ताद से और वो सहाबी से, और सहाबी सुना करते थे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कभी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 3 बंदे हुआ करते थे, और कभी 2, एक ताबी एक सहाबी। लेकिन ताबी से चूंकि मुलाकात बराह रास्त नहीं हुई है, अक्सर उनकी मुलाकात हदीस है 3 वास्तों से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। उन हदीसों को कहते हैं सुलासियात। 3 वास्ते बीच में आते होंगे। ये सबसे मजबूत बात कही जाती है। मुझसे इन्होंने, उनसे उन्होंने, उनसे उन्होंने, वो जो कहेगा उन्होंने उसमें लगता है कहीं बीच में कोई बंदा मिस ना हो गया हो, लेकिन बंदे जब कम हो तो बात मजबूत कही जाती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब लिखी मुअत्ता मालिक, उसके अंदर सबसे कम सनद है, और आज भी मदारिस के अंदर वो पढ़ाई जाती है। मदरसों के अंदर मौलवी तब तक मौलवी नहीं होता है जब तक उसको मुअत्ता मालिक और मुअत्ता मोहम्मद पढ़ाई जाती है। लेकिन अल्लाह की शान करीमी बहुत ज़माने के बाद, करीब तो 200 साल के बाद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिआ, लेकिन शागिर्द दर शागिर्द असल इनके उस्ताद से हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ से सिलसिला चला आ गया, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुखारी शरीफ को लिखना शुरू कर दिया। कमाल का हाफिज़ा उस ज़माने के अंदर हुआ करता। ये तो इमाम बुखारी थे, फिर सहाबा का क्या हाल होगा, ताबईन का क्या हाल होगा। फिर कोई कहे ये कि सहाबा को हो सकता है कोई हदीस भूल गई होगी, फिर खुद से ही बात बयान की गई होगी। और सहाबा की ये खुसूसियत थी, मुहद्दिसीन की ये खुसूसियत है कि अगर वो किसी हदीस के अल्फाज को भूल जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे ही कहा या इस जैसे कहा, जैसे कि आमतौर पर मुकर्रिर आखिर पर कहता है औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी यार जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। फिर उसी हदीस के बहुत सारी शक्लें निकल गई। एक है हदीस बिल माना, यानी अल्फाज वो नहीं है जो उसका मतलब है, उसका मफहूम है, वो बयान किया जाता है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि ये हदीस मैंने बराह रास्त ऐसे सुन ली है अगर सनद मौजूद नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने कमाल का हाफिज़ा दिया था, कमाल की ज़हानत दी थी। 17 साल की उम्र में तमाम बुखारी को याद कर लिया था, और सिर्फ बुखारी को याद नहीं किया था, इस नुस्खे के अंदर लिखा है कि इस बुखारी के अंदर 7262 हदीसें हैं। लेकिन बाज़ ने लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 2 जिल्दों के अंदर 7372 हदीसें या इससे ऊपर नीचे 7000 से ऊपर हदीसें, ये यकीनी तौर पर इस किताब के अंदर लिखी है। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को एक कौल के मुताबिक 6 लाख हदीसें याद थी। और ऐसे नहीं सिर्फ सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम, बल्कि ऐसे जैसे मैंने आपको सुनाया, मुझसे उन्होंने कहा, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, ये पूरी सनद के साथ उनको 6 लाख हदीसें याद थी। लेकिन 6 लाख हदीसों में से उलमा ने कहा कि 2 लाख हदीसें वो है जो कमजोर दर्जे की, 4 रह गई। फिर 4 तो बिल्कुल सच्ची पक्की है, फिर भी उनमें से बार मुतशद्दिद मुहद्दिसीन ने कहा नहीं 2 लाख कमजोर थी। 2 लाख हदीसें इमाम बुखारी को वो याद थी जिन पर किसी मुहद्दिस, किसी आलिम उस जमाने के अंदर जितने आलिम थे किसी ने कोई कलाम नहीं किया, और आज तक उस पर कोई कलाम करने वाला नहीं। लेकिन 2 लाख हदीसों में से इमाम बुखारी ने अपनी इन 2 जिल्द किताबों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस नुस्खे के मुताबिक 7262 हदीसें इस किताब के अंदर महफूज है। तो 2 लाख माइनस कर लो 7262, बाकी कितनी बच गई?
मास्टर चुने बाहर जितनी बच गई कम से कम 1,92,000 तो बच गई, ये तो पक्की है। तो 1,92,000 ये हदीसें कहाँ गई? ये महफूज है, ये दूसरी किताबों के अंदर है। असल ये सारी तमहीद सुनाकर मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, इसलिए तमहीद मान रहा हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 2 लाख सही हदीसें याद थी और में से 7,262 इस किताब के अंदर मौजूद है। बाकी तकरीबन 1,92,000 या 93,000 हदीसें और भी मौजूद है, वो दीगर किताबों के अंदर मुंतशिर हो गई है। अब चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर आ गया है, अब हर बंदा ये कहता है फारोश, हर बंदा ये कहता है अब मदरसों में जाने की जरूरत नहीं है। अब तो हाथ के अंदर बुखारी, हाथ के अंदर तर्जुमा, हाथ के अंदर तफसीर, सब कुछ हाथ के अंदर आ गया है। अब मदारिस खोलने की जरूरत नहीं, अब मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब इमाम साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर सराहतन और बराह रास्त इस किताब से कोई बंदा हिदायत पा जाता, हमसे ज्यादा आपसे ज्यादा अरबी जबान को जानने वाले मक्कातुल मुकर्रमा के रहने वाले अबू जहल एंड कौसली थी। मक्का मुकर्रमा में जितने अरब थे सारे अरबी जानते थे। वो ये कहते थे हम बात करने वाले हैं, हम जबान वाले हैं, बाकी दुनिया के सारे इंसान गूंगे हैं। लिहाजा कुरान करीम को खाने काबा की छत पर या खाने काबा के अंदर रखा जाता और फिर उन लोगों से कहा जाता एक एक करके दाखिल हो जाओ और कुरान पाक की एक एक सूरत या एक एक आयत पढ़ो, फिर उसको समझो, फिर उस पर अमल करो। ऐसा नहीं हुआ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान को आहिस्ता आहिस्ता उतारा गया और जब ये कुरान उतरता था, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त किसी ऊँटनी पर सवार होते थे तो वही के बोझ की वजह से वो ऊँटनी बैठ जाती थी, और अगर किसी सहाबी के गोद मुबारक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हुआ करता था और इधर से हज़रत जिब्रील वही लेकर आते, वो सहाबी ये समझता मेरी टांग टूट चुकी है, वही का इतना बोझ था। ये बोझ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। इन्ना अरदना अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहा इंसान। पहाड़ों ने कहा हम नहीं याद कर सकते, दरख्तों ने कहा हम नहीं याद कर सकते, ये छोटे छोटे चपत्ती के शोरे ये खड़े हुए कहेंगे हम इस कुरान को याद कर लेंगे। ये कुरान का मौजज़ा था। छोटे छोटे बड़े खड़े हो गए कि हम कुरान को याद कर लेंगे, और छोटों ने भी याद कर लिया, बड़ों ने भी याद कर लिया। अभी माँ की गोद से निकले थे, 3 साल की उम्र का बच्चा भी हाफिज हो गया और 63 साल का जब बूढ़ा भी हाफिज हो गया। बल्कि 63 साल नहीं, हमने 74 साल के बूढ़े का तज़किरा उस बंदे से सुना है जिस बंदे ने 74 साल के बूढ़े हाफिज को अपनी आंखों से देखा था। 64 साल की उम्र में वो मदरसे में आया, 74 साल की उम्र में वो हाफिज कुरान बनकर मुजफ्फरनगर से फारिग भी हो गया। अल्लाह ने इस कुरान की अमानत को, बोझ को उठाने के लिए बच्चों को भी तैयार किया, जवानों को भी तैयार किया, बूढ़ों को भी जवान किया, मर्दों को भी तैयार किया, औरतों को भी तैयार कर दिया। अभी जो मौलाना अंसर साहब सुना रहे थे, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अक्सर और बेशतर तो यहाँ पर हमारे तबलीगी हज़रात बैठे हुए हैं, कुरान से ज्यादा तो ये फज़ाइल आमाल को पढ़ते हैं, कुरान बहुत कम पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान कहते हैं खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, हाफिज हाफिज, हमें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। अक्सर तबका मुसलमानों का वो है जो कुरान नहीं पढ़ता है। कुरान नहीं पढ़ोगे अल्लाह के यहाँ छोड़े नहीं जाओगे, कुरान को छोड़ दोगे अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा, कुरान की तिलावत को छोड़ दोगे अल्लाह तुम्हारे घरों को छोड़ देगा, तुम कुरान की तिलावत को छोड़ दोगे अल्लाह तुम्हारे बच्चों को छोड़ देगा, तुम कुरान की तिलावत को छोड़ दोगे अल्लाह तुम्हारे कारोबार को छोड़ देगा, तुम अल्लाह के कुरान की तिलावत को छोड़ दोगे अल्लाह तुम्हारी जमीन और जायदाद को छोड़ देगा। तो ये हो रहा है।
हमारे घरों में, हमारे औलाद में, हमारे दुकानों पर, हमारी मुलाजमतों में, हमारी जमीन और जायदाद में जो कुछ हो रहा है ये तर्के सलात और तर्के कुरान की वजह से हो रहा है। हम दोष देते हैं दूसरे पर, हमारे यहाँ कुरान की तिलावत नहीं होती है। सुबह को उठकर मोबाइल को देखना ये फर्ज आइन समझा जाता है, ये व्हाट्सएप को चेक करना ये फर्ज आइन समझा जाता है, फेसबुक को खोलना ये फर्ज आइन समझा जाता है, लेकिन अल्लाह के कुरान को समझना ये गलती और गुनाह समझा जाता है। जवान तो समझता ही समझता है। क्या कोई गयूर माँ बाप, क्या कोई दीनदार माँ बाप, क्या कोई हाजी और नमाजी माँ बाप, क्या कोई तबलीगी माँ बाप और क्या कोई मौलवी माँ बाप भी सुबह उठकर अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को कुरान की तिलावत करने के लिए मजबूर करते हैं? कोई नहीं है। 100/100 0% होगा। हम न पढ़ते हैं, अपनी औलाद को पढ़ने की तरगीब देते, न तालीम देते हैं। अगर हमारा रवैया यही रहा, एक दौर हुआ आएगा, एक जमाना हुआ आएगा, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें अपने कुरान को अपने हाथों से दफन कर देंगे, अपने हाथों से अपने कुरान को दूसरों को हदिया करेंगे। इस कुरान को पढ़ने वाला हमारे घर में कोई नहीं रहा, इसको मस्जिद और मदरसे में डाल दो। और आज की तारीख में ऐसा हो रहा है। हमारे बोंजवा में नहीं हो रहा है, लेकिन दीगर इलाकों में जरूर हो रहा है। लेकिन बोंजवा वाले ये न समझे हम कुरान के बहुत बड़े हाफिज और बहुत बड़े मुहाफिज हो गए। सुबह उठकर देख लेना, तबलीग वालों, खुसूसी मुलाकात करने के लिए आप लोगों ने वक्त मुतय्यन किया, असर के बाद, मगरिब के बाद, फजर के बाद, सारी शरीयत का मुलाकात करें। तुम ही तो वो थे जिससे इस दौर के अंदर, इस जमाने के अंदर उम्मत को एक आस लगी थी, उम्मत को एक उम्मीद लगी थी। यही वो तबलीगी है, यही वो अल्लाह वाले हैं, यही वो मुक्चा उठाने वाले, ये दर-दर की ठोकरें खाते हैं, दर-दर की गालियां खाते हैं और हमें पकड़ कर अल्लाह के रास्ते में ले जाकर कुछ दीन सिखाते, कुछ नमाज सिखाते। अफसोस है हमारा तबलीग वाला भी बैठ गया, हमारा अमीर भी बैठ गया, हमारा फकीर भी बैठ गया, हमारा सब सुबह उठकर लंबी कर सो जाते हैं। तबलीग वालों जाग जाओ, वरना वो वक्त दूर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से तबलीग वालों के बच्चों को मुर्तद होते हुए देखा है और ये दूर की बात नहीं। आपके खित्ते शराब के अंदर आपका तबलीग का बच्चा अपने फेसबुक पर लिखता है एक्स मुस्लिम और प्रेजेंट अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है जो खुदा का भी इनकार कर देगा, और वो छोटा मोटा नहीं, ऐसे तबलीगी का बच्चा है। अगर मैं नाम लूंगा, यहाँ के पुराने सारे तबलीगी उस नाम को जानते और पहचानते थे। क्या जरूरत इस घर को लग गया घर के चिराग से। हमने जब ये सोच लिया मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है, बस मुझे तो मुलाकात कर लिए असर के बाद, जब लोग जाग रहे होंगे और तब ये दुकानों पर होंगे, बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। मगरिब के बाद अपने कामों में मशगूल, बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ओ तबलीग वालों जाग जाओ, खुद भी जागो, इस उम्मत को भी जगाओ। हर एक का काम अलग अलग है। अल्लाह की नियामत समझो, अल्लाह का एहसान समझो। इस गए गुजरे दौर के अंदर तुम जैसे दुकानदारों को, तुम जैसे जमींदारों को, तुम जैसे मजदूरों को अल्लाह ने अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल किया था, लेकिन तुम लोगों के अंदर गुमंड आ गया, तकब्बुर आ गया, अनानियत आ गई। दीन के दावेदार हमें, दीन के ठेकेदार हमें। अल्लाह ने तुमको दिखा दिया, तुम्हारी फाड़े कर दी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे, तुम्हारे दिलों के अंदर कदूरत आ गई। ये वजह ये है तुमने दीन को इस्तेमाल जरूर किया, तकब्बुर आ गया, हसद आ गया, कीना आ गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी मौका है। बात मेरी बहुत कड़वी लगेगी, बात बहुत सख्त लगेगी, लेकिन हकीकत ये है, यकीनी तौर पर ये बात आ चुकी है और अल्लाह किसी कौम को यूं ही गिराता नहीं है। हर कौम के, हर उरूज के सवाल होता है, उस सवाल के पीछे कुछ वजह होती है। बेवजह और वजहों के एक वजह ये भी आ गई थी कि हम ही दीनदार हैं। हम ही दीनदार नहीं है, हम भी दीनदार हैं। क्या कहते हैं? यही दीन है, यही दीन नहीं है, ये भी दीन है। असल दीन तो ये है, हम लोगों ने कहा, उलमा को कमतर कहना शुरू कर दिया, उम्मत के मकाम को अब नीचे चढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे बदबख्त लोग भी हैं, ऐसे बदनसीब लोग भी हैं जो चोटी के उलमा को, मुहद्दिसीन को, फुक़हा को और औलिया किराम
वालों को गालियां देते हैं और वो ये समझते हैं हम बड़े दीनदार हैं, हम बड़े परहेजगार हैं, हम बड़े तकवे वाले हैं। अल्लाह जो किसी वली को तकलीफ देगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आज़ा वलियन फक़द अज़नतु लिल हर्ब, जो मेरे किसी वली को तकलीफ देगा मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है। और जब ऐलान जंग होता है तो दुश्मन से सबसे पहले उसकी कीमती चीज को छीन लेता है। और ईमान वाले के पास सबसे कीमती चीज का ईमान है। कहीं ऐसा न हो हमारा ईमान छिन जाए और हम कहते रहेंगे हम दीनदार है, हम दावेदार है, लेकिन कहीं हमारा ईमान छिन न गया। अभी हमारे लिए मौका है, रुजू अल्लाह करे, तौबा करे, इस उम्मत को जगाने की जिम्मेदारी जो अल्लाह ने हम पर दी थी जगाने की कोशिश करे। ये शाम की मुलाकातें छोड़ दो, ये दिन की मुलाकातें छोड़ दो, सुबह को उठो, सुबह को उठो, सुबह को उठो, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लो। लेकिन अगर कारगुजारी देखी जाएगी और इमाम साहब से कहा जाएगा जरा फजर की नमाज में 1 महीने की लिस्ट लाकर दिखाओ, सबसे पहले कम तर नमाज पढ़ने वाले हमारा दीनदार तबका होगा जो फजर की नमाज के अंदर शरीक नहीं होता है। और मैंने अर्ज किया था सबसे ज्यादा फज़ाइल आमाल को पढ़ते हैं, उसी फज़ाइल आमाल के अंदर ये हदीस है। मेरा दिल ये चाहता है मैं मस्जिद नबी के अंदर किसी और शख्स को खड़ा करूं और खुद लोगों के घरों के अंदर जाऊं, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो बगैर उज़्र के घरों में नमाज पढ़ते हैं। बेनमाजी के घरों को आग नहीं लगाया, बल्कि वो नमाजी जो बगैर उज़्र के घरों में नमाज पढ़ते अल्लाह के नबी को मेरा दिल चाहता आग लगा। अब जो हम लोग बगैर उज़्र के घरों में नमाज पढ़ते हैं वीडियो हमारे घर के अंदर बरकत आएगी हरगिज़ नहीं। लेकिन अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्लाह ज़ंबा, आज जो कुछ हो गया है हो गया है, हम असर लो तौबा करेंगे। कभी कोताहियां मुझ में भी है, आप में भी है, हर एक में कभी कोताहियां है, लेकिन चूंकि इस उम्मत को, इस आवाम को आपसे उम्मीदें हैं, हमसे उम्मीदें हैं, उलमा से उम्मीदें हैं, मदारिस से उम्मीदें हैं, तबलीग से उम्मीदें हैं, लिहाजा उलमा को भी कहा जाता है, आवाम को भी कहा जाता है, मुअल्लिमीन को भी कहा जाता है अपनी जिंदगी को संवारो और अपनी जिंदगी को अमल पर खड़ा करो। हम तो पहले कहा करते थे भाई सफर ऐसे करो अमल बाकी रहने चाहिए, लेकिन आज दौर वो आ गया है सफर ऐसे करो कहीं ऐसा हो कि तुम्हारा ईमान छिन जाए। ये हालात चल रहे हैं और ईमान छिनता चला जा रहा है। और मैं एक ऐसे आलिम को भी जानता हूँ, एक ऐसे आलिम को भी जानता हूँ जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, जो अपने वक्त का फकीह भी है, जो अपने वक्त का मुअर्रिख भी है, जो अपने वक्त का मुफस्सिर भी है, लेकिन आज की डेट में उसका बेटा एक गुमराह आदमी जो पाकिस्तान में रहता है गांधी के नाम से उसका पैरोकार बन चुका है। गांधी गुमराह हो चुका है, गांधी राय रास्ते से हट चुका है। जब हमारी निगाह घरों पर नहीं होती है, आलिम का बेटा भी बिगड़ सकता है और आम का बेटा भी बिगड़ सकता है, तबलीगी का बेटा भी बिगड़ सकता है, हर एक का बेटा बिगड़ सकता है। लेकिन अगर हमने निगाह रख ली अपनी औलाद पर तो शायद हमारी औलाद बिगड़ने से बच जाएगी। और ये दीन हमेशा चाहता है कुर्बानियां, कभी चाहेगा नींद की कुर्बानी, कभी चाहेगा वक्त की कुर्बानी, कभी चाहेगा माल की कुर्बानी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितनी कुर्बानी इस दीन के खातिर मैंने दी है किसी और नबी ने नहीं दी है। हालांकि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है उनको आरे से चीरा गया, लेकिन आप फरमाते हैं जितना मुझे इस दीन के खातिर सताया गया किसी और को नहीं सताया गया। अगर कुरान की बात, हदीस की बात, किताब को पढ़कर समझ में आ जाती हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज मैं और आप उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ गुमराही का दौर है, जहाँ लोग ये कहते हैं अब तुम बराह रास्त बुखारी शरीफ को पढ़ सकते हो, आप बराह रास्त कुरान को समझ सकते हो, आप बराह रास्त कुरान और हदीस से मसाइल को निकाल सकते हो। और ये बातें करने वाले उलमा नहीं है, ये बातें करने वाले फुक़हा नहीं है, ये बातें करने वाले मुफस्सिर नहीं है, ये बातें करने वाले मुहद्दिस नहीं है, बल्कि ये बातें करने वाले इस्लाम के नाम के स्कॉलर हैं। और स्कॉलर किसको कहते हैं? जिसने 4 किताबों का मुताला कर
को कहता है इस्लाम का सिखाना। हमारे बोंडवा के अंदर एक बुजुर्ग थे, एक हाजी थे, वो ये कहा करते थे आपके हथकड़ों को कभी नब्ज़ नहीं दिखाना चाहिए और मुताले के मौलवी से कभी मसला नहीं पूछना चाहिए। हमें तब समझ में नहीं आई, आज समझ में आ रही है वो कहना क्या चाहते थे। ये मुताले का मौलवी, ये वही जो सिकालर बने हुए, जो यूट्यूब के मुहद्दिस बने हुए, यूट्यूब के फकीह बने हुए, यूट्यूब के मुफस्सिर बने हुए और यूट्यूब के बुखारी के हाफिज बने, बंद कमरों में बैठकर बुखारी का हवाला दे देना और फिर वीडियो बनाना। और बोंडवा के जवानों, अफसोस तुम्हारे लिए, तुमने उलमा की जमात को छोड़ दिया, इन उलमा के असातिज़ा को छोड़ दिया और असातिज़ा के असातिज़ा को छोड़ दिया और यूट्यूब के मुक़ल्लिद बन गए और यूट्यूब के मुत्तबिईन बन गए और यूट्यूब के मुरीद बन गए। याद रखो बोंडवा के नौजवानों, आप नौजवानों के दरमियान में ऐसे नौजवान पैदा हो रहे जो गुमराह हो रहे, जो कुरान का इनकार कर रहे, जो हदीस का इनकार कर रहे, जो उलमा का इनकार कर रहे, जो कौम का इनकार कर रहे। और ये क़यामत की अलामतों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे जो पुराने लोगों को जहन्नमी कहेंगे, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो पुराने लोगों को गुमराह कहेंगे, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो पुराने लोगों को बिदअती कहेंगे। आज ऐसे बातें करने वाले आपके इलाका बोंडवा के अंदर मौजूद है और वो नौजवान गुमराह होता जा रहा है और वो यूट्यूब का सहारा लेकर अपने आप को मुतमईन कर रहा है कि ये बात तो बुखारी के अंदर लिखी हुई है, रफ़ुल यदैन करना चाहिए। अगर बुखारी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि क़िराअत खल्फ़ल इमाम है, अगर बुखारी के अंदर रफ़ुल यदैन लिखा है, इसी बुखारी के अंदर लिखा है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने शराब पी, फिर मैदान काज़ा में गए, शहीद हो गए, जन्नत में चले गए। तुम जरा शराब पे आकर तो दिखा दो, तुम जरा शराब पी कर दिखाओ। इस बुखारी के अंदर मौजूद है, इस बुखारी के अंदर मौजूद है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जूते लगाकर नमाज पढ़ी थी। तुम जरा जूते लगाकर मस्जिद के अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़कर आओगे या जूते खाकर आओगे? तुम जिस बुखारी का हवाला देते हो, इसी बुखारी और इसी तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबह तकौनी फबाल काइमन, आपने पूरे काम पर आए, खड़े होकर आपने पेशाब किया, तुम जरा खड़े होकर पेशाब करके तो दिखा दो। ये सारी बातें हदीस के अंदर मौजूद है, सियाक और सबाक मालूम नहीं है, मालूम नहीं है ये हदीस नासिख है या मनसूख है। ये तो मुहद्दिसीन ने बताया है। ये हदीस किस ज़माने की है, कब की है? आज हमारा नौजवान रफ़ुल यदैन करने के लिए तैयार है, सीने पर हाथ बांधने के लिए तैयार। जरा तहकीक तो करो, 4 हदीसें उस मिर्जा बदबख्त इंजीनियर की बकवास सुनकर हमारा नौजवान गुमराह हो रहा। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, इंजीनियर गुमराह है, गामदी गुमराह है, मिर्जा कादियानी ये गुमराह है, ये लानतियों की जमात है, ये बदबख्तों की जमात है, ये वो जमात है जो उम्मत के अंदर तफरीक डालते हैं, जो ये कहते हैं हम नबावी है, हम नवाबी है, हम तो किताबी है। अगर किताब से बगैर इल्म सीखना होता फिर सहाबा किराम को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने की जरूरत नहीं थी, बराह रास्त किताब से सहाबा इल्म सीख लेते। न मैं बाबी न मैं वहाबी, मैं हूँ किताबी। ये उस इंजीनियर जो गुमराह है, यकीनी तौर पर गुमराह है। ये मेरी बात नहीं, इन मौलवियों की बात नहीं है, मारे दारुल देवबंद का फतवा है। और उसके नजरियात को देखो, उसकी बातों को देखो, चंद वीडियो क्लिप को सुनकर तुम ये कहते हो इंजीनियर बहुत बड़ा स्कॉलर है। मैंने पहले अर्ज कर दिया, दीन में स्कॉलर नहीं चाहिए, दीन में तो उलमा चाहिए। कुरान ने कहा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये उलमा अल्लाह से डरने वाले। एक रसूल के आदमी है, मैं अगर कसम खाकर ये कहूँ ये वक्त के वली है, अगर मैं ये कहूँ ये वक्त के खुतब अब्दाल है, शायद मैं हानिस नहीं होगा, शायद मैं हानिस नहीं होगा। इनमें से अक्सर वो उलमा है जो सुबह को उठते हैं अल्लाह के कुरान को देखते हैं, सुबह को उठते अल्लाह के कुरान को सुनते, सुबह को उठते अल्लाह को कुरान को बोलते, शाम उनकी इसी हाल में गुजरती, रात इनकी इसी हाल में गुजरती है। और एक छोटा सा इमाम तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है
تو ایک نماز کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس ایک امام کو ایک نماز کے بدلے میں 25 نمازوں کا نہیں بلکہ 10 دفعے 25 کر دو, پھر 30 دفعے 25 کر دو, پھر 50 دفعے 25 کر دو, جتنا تم سب کو مل کر کر کے وہ سارا اس امام کے کھاتے میں آ گیا. کیا یہ امام ولی نہیں ہے؟ کیا یہ امام نیک نہیں ہے؟ کیا یہ امام اللہ والا نہیں ہے جس کی زبان ہمیشہ اللہ اللہ کہہ رہی ہو؟ جب گشت کرنے کے لیے نکلتے کہتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے 70,000 سبحان اللہ کے بدلے میں. حضرت استاد مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری نور اللہ برکتہ فرماتا یہ غلط بات ہے, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن مشہور ہے. ہم 70 سے ضرب نہیں دیں گے. مفتی صاحب نے فرمایا تھا ضربے مت دو بلکہ یہ کہو بندہ جو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے ایک قدم آگے بڑھتا ہے, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد اور نیکیوں کی بارش پر ہوتی ہے. جو لوگ 24 گھنٹے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے لگے ہو, کیا وہ چھوٹی کوئی مخلوق ہے؟ وہ کوئی چھوٹا کرتا ہے جس کو قرآن حدیث میں خود کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص ہوئے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. اور اس طبقے سے, اس جماعت سے دوسری کوئی جماعت نہ خیر ہے نہ بہتر ہے. باقی سب طبقات میں رہے, باقی ذیلی جماعتیں آ جائے گی, باقی دین کی خدمت گزار آ جائے گی, لیکن دین اگر باقی ہے ان علماء کی وجہ سے, دین اگر باقی ہے ان حفاظ کی وجہ سے, دین اگر باقی ہے ان محدثین کی وجہ سے, دین اگر باقی ہے ان مفسرین کی وجہ سے. جس دن اللہ یہ حفاظ دنیا سے چلے جائیں گے, قرآن دین دنیا سے مٹ جائے گا. جس دن یہ علماء ختم ہو جائیں گے دنیا کے اندر زلزلہ آ جائے گا. جس دن یہ علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے, ناپید ہو جائیں گے, اللہ اپنے قرآن کے الفاظ کو اٹھا لے گا, خالی شفا باقی رہ جائے گا, قرآن کے الفاظ باقی نہیں رہیں گے. جو لا الہ الا اللہ ہے, اس لا الہ الا اللہ کی سب تحفظ دین بھی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مشہور آیت ہے. اس مشہور آیت کو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں. خیر کی تعلیم دینا, خیر کی بات کہنا اور دین عن المنکر کرنا, اس آیت کے اندر تحفظ دین اور اشاعت دین کو بیان کیا گیا ہے. اگر دین کا تحفظ نہیں ہوگا دین باقی تو رہے گا, نام کا باقی رہے گا, اصل شکل ختم ہو جائے گی. اور ایسا ہوتا ہے بعض لوگ شکل کے اعتبار سے, دینی شکل کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, وہ حقیقت میں دیندار نہیں ہوتے. بس آخری واقعہ بیان کر کے ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. اسی بخاری کا ختم تھا, اسی بخاری کا آخری سبق تھا, اور ہمارے استادوں کے استاد مولانا قاسم نانوتی نور اللہ مرقدہ کے استاد شاہ عبد الغنی محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے بخاری کا آخری درس دیا. وہاں پر عوام نہیں, وہاں پر علماء موجود تھے. بخاری کا آخری درس میں علمی نکات کو بیان کیا جاتا ہے, لیکن وہ درسگاہ میں اصل مجھے جو اس کے ماخذ نکال کر جو عرض کرنا تھا وہ عرض کر رہا ہوں. شاہ عبد الغنی محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے پورے مجمع کے اندر نظر ڈالی, ایک بندے کو بلا لیا اپنے پاس اور اس سے کہا مولوی نور الدین, مجھے تمہارے چہرے کے اندر سے خیر نظر نہیں آ رہی ہے. تم نے اس دین کے الفاظ تو یاد کر لیے ہیں, اس کے معنی اور اس کا نور حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دو. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور آگے چل کر وہی نور الدین جو مولوی کہتا تھا اپنے آپ کو, وہ حکیم نور الدین مرزا قادیانی ملعون کا اول خلیفہ اور اول اس کا شاگرد بن گیا تھا. اور وہ بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز جموں و کشمیر کے شہر جموں کا رہنے والا تھا, اور مرزا قادیانی بدبخت کا اخص الخاص تھا. الفاظ اس نے پڑھے تھے چھوٹے موٹے علماء سے نہیں, بلکہ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی سے بخاری پڑھی تھی, حدیثیں پڑھی تھی. لیکن جب اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوتا ہے, اللہ والوں کے ساتھ
साथ नहीं होता है। किताबें पढ़कर भी और तफसीर पढ़कर भी और मसाइल पढ़कर भी बंदा गुमराह हो जाता है। और ये वही लोग होते हैं जो ये कहते हैं हमसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, आओ हमारी टक्कर के लिए और हमारे मुकाबले के लिए जिसको चाहे लेकर आ जाओ, हमसे मुकाबला करो, चाहे तकी उस्मानी को लो, चाहे फला उस्मानी को लो। लेकिन जब छोटे छोटे मौलाना मंसूर के कहने के मुताबिक मुगलू चले जाते हैं तो उसका इंटरनेट बंद हो जाता है, उसका टावर उड़ जाता है। ये दुनिया के अंदर अल्लाह उन लोगों की रुसवाई और जिल्लत दिखाते हैं। लेकिन फिर भी अगर बोझों के गयूर नौजवानों, अगर आप लोगों ने YouTube के हाथ पर बैत कर ली और YouTube का अपना पीर और YouTube का अपना उस्ताद मान लिया, गुमराही की तरफ चले जाओगे। मैंने ये बात पहले भी कही थी और उस पर मुफ्ती साहब ने मुझसे मजाक के तौर पर पकड़ भी की थी कि तुमने इसमें तफसील का सीगा बहुत पढ़ लिया है। तो मैंने कहा पढ़ा तो नहीं है। मैंने कहा हाँ, किसी जलसे में मुफ्ती नज़ीर साहब की बड़ी तारीफ बयान कर रहे थे। मैंने कहा तो मजबूरी थी, वो बताना जरूर था। कि कहा, मैंने कहा भोजवा में, कहा वहाँ क्या जरूरत थी। मैंने कहा चराग करे अंधेरा, जहाँ के आप शेखुल हदीस हो, जहाँ के आप मुफ्ती आजम हो और जहाँ के वो मुफ्ती हो जिसको दारुल देवबंद ने बगैर दरख्वास्त दिए, बगैर रिक्वेस्ट किए 3 मरतबा शूरा ने मुफ्ती आजम के ओहदे के लिए फाइज और नामजद कर लिया। लेकिन कश्मीरियों ने नहीं छोड़ा, इसलिए कि कश्मीरी मुफ्ती साहब की औकात को और आपके इल्म को जानते भी थे, पहचानते भी थे। माफ नहीं करना, माफी नहीं मांगूंगा। एक बंदा कहने लगा मुफ्ती नजर सब तुम वक्त ही लागत तुम इसका अस्तगफिरुल्लाह, मैं फिर कहने पर मजबूर हो जाता हूँ। बहुत नाराज हो जाएंगे बहुत लोग अगर ये वीडियो बन गई होगी, कमेंट्स बहुत बुरे बुरे आएंगे और भोजा वाले जरूर कमेंट करेंगे कि वीडियो बड़ी फतवा दिलवा तबलीग वाले के खिलाफ। एक मर्तबा मैंने मसला बयान किया और एक बंदा कहने लगा यो तबलीग वाले सुन बच्चे अब इस पैसे में ये स्कातकारी इस खिलाफ अनबू फतवा दार पड़े। मैंने कहा मेरे पास आओ, सवाल लिखकर मैं दे दूंगा और मैं देवबंद जाऊंगा, जवाब लेकर आ जाऊंगा। फतवा तेरे हाथ में आएगा या मेरे हाथ में आ जाएगा। जब उलमा, जब दीनदार, जब लोग ये कहेंगे मुफ्ती नज़ीर चुन वक्ती लागत तब इसका पता चू ये तबलीगी नहीं है, ये तो गुमराह हो चुका है, ये राह रास्त से भटक चुका है। जो उलमा की शान में गुस्ताखी करेगा अल्लाह मेरे बोल को झूठा कर दे। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मरने के बाद उसकी कब्र को खोद कर देख लेना, उसका चेहरा किबले से फिरा होगा। एक बंदा कहता है मौलाना अरशद मदनी को अपनी दुकान चढ़ाओ। जब इस तरह की बातें उलमा की शान में कही जाएगी फिर अपने ईमान की खैर मरद है। लिहाजा हमें तौबा करना चाहिए और अपने आप को उलमा के साथ जोड़ लेना चाहिए। और हमारी खुशकिस्मती है, अक्सर और बेशतर यहाँ कर मैं अर्ज करता हूँ कि मुफ्ती नज़ीर साहब हमारे इलाके के हर रसाई वहाँ तक मुमकिन नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे उलमा यहाँ पर मौजूद है जिन्हें अपनी सब कुछ इन इदारों के अंदर लगा दी है, सब कुछ लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात में से ऐसे उलमा भी मौजूद है, अगर वो मजदूरी करना चाहेंगे, अगर वो बिजनेस करना चाहेंगे, अगर वो कारोबार करना चाहेंगे, सारे बोर्डों के बिजनेस वालों को पीछे छोड़ देंगे। मौलवी चला करान ये तिकड़वी जवाब की जुतू तरसम क्या जवाब की जुतू तरसम वालिद मरहूम फरमाया करते थे दबा मौलवी चलो खतरनाक है मिस कैसे आवाजी दबा मौलवी चलो खतरनाक है मिस कैसे दबा मुझे खाना का वक्त काट ले मिस कैसे। वो असल में घर में कोई बात चल रही थी कि मन्नत माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, तो फिर कहने लगे ये औरतें ना उल्टी पुल्टी मन्नतें मान लेती है, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलवियों को ये रास्ता निकाल देते हैं। मैं तो अब क्या हो तो जनान और तुमको बच में मार सरज मनम, अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो मैं जुमे के दिन ढोलकी मिंबर पर बैठकर ढोलकी बजवाऊंगी और बजवाऊंगी। जब बच्चा ठीक हो गया खानदश बनन तो मैं अच्छे से जुमा पढ़ रही हूँ तब कैसे मैं इमाम समझता था डंडवारिया बोर्ड कल पढ़ाई से दिन में थी तब मैंने मन्नत मानी है मैंने ढोलकी बजानी का नहीं ये तो नहीं बस मुसीबत है मेरे लिए।
इमाम साहब के पास बोले अंदर चलो है गरबाजी जो ढोलक से बजा में महमूद सोई क्या कहता करो लेकिन मुसीबत में ये कैसे ढोल की बजाना तो शादी में जायज नहीं कब्यारन में शन जायज ये कब्यारा ही जाए बहुत देर सोचने के बाद मैंने कोई बात नहीं है अल्लाह ने मुझे आपका रहबर बनाया है रहनुमा बनाया है आपके लिए कोई रास्ता निकाल कर लेंगे ये काम की कोई बात नहीं है जुमे के दिन में का ढोली कैंसर बड़े बड़े पड़े तेरे मशीन में बात नहीं होने लगी उन्हें मिंबर के पीछे रखी और जब मौलाना ने बात शुरू कर दी ये हलाल है ये हराम है ये हलाल है ये हराम है ये हलाल है ये हराम है पीछे से निकाली ढोलकी रखी है कहा देखो ये ढोलकी है इसको इधर से बजाओ तो हराम है इधर से बजाओ तो हराम है इधर से बजाओ तो हराम है तब करो इसको ये ढोलकी नहीं बजानी चाहिए ढोलकी बजा भी दी रास्ता बता भी दिया तो बंदा भी पूरी अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना को ये हमारे रहबर है रहनुमा है ये कायद है अगर ये रहेंगे तो बाकी रहेंगे अल्लाह ने इनको इतना दिमाग दिया है ये सारी दुनिया को नचवा सकते हैं लेकिन इन्हें काम किया हमारा बोरिया बिस्तरा और कोई काम नहीं है अल्लाह इनको जैसे लिहाजा इनके साथ जुड़ जाओ जो कोई मसला है और जिस आलिम से आप मुतमईन हैं मैं ये नहीं कहता आप जरूर इनसे मसला पूछो इनसे पूछो इनसे पूछो जिससे आप मुतमईन हैं लेकिन दूसरे किसी आलिम की तौहीन हरगिज़ मत करो चाहे वो छोटे दर्जे का आलिम हो चाहे बड़े दर्जे का हो कि उलमा वैसे है कारण इंता वरन चाहता नहीं था लेकिन नबर का उसी का कारण है जब तकदीर आशी कारण जिस बंदे ने ये कह दिया अगर उसने तौबा नहीं की अपनी ईमान की खैर बनानी है लिहाजा तौबा करके उलमा के साथ जुड़ जाना चाहिए और इनके वास्ते से हम बड़े बड़े उलमा के साथ इंशाअल्लाह जुड़ जाएंगे आखिर पर इस हदीस का तर्जुमा करते हैं और बात खत्म करते हैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है ज़बान पर बहुत हल्के फुल्के हैं लेकिन जब कल क़यामत के दिन को तोला जाएगा वो बहुत भारी होंगे तबलीग वाले अक्सर वरन अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान लेकर जाओगे इस दुनिया से 70 गुना ज्यादा बड़ी जन्नत मिल जाएगी मैं तो बस राई के दाने को तब तो सुबह सिविल सुनो मैं तो बस ना सिविल से नीचे वो जो सुबह जहाँ से धूप निकल रही है और दीवार के अंदर एक तृण है उस तृण में से जो वो सूरज की रोशनी आ रही है वो रोशनी यहाँ पड़ रही है उस तृण से लेकर यहाँ तक जो सूरज की किरणें उसके नीचे देखो छोटे छोटे जर्रात नजर आ जाएंगे वो पकड़ने से पकड़े नहीं जाएंगे और तोड़ने से तोड़े नहीं जाएंगे उसको कहेंगे जुज़े लाए तजज़्ज़ा उसको कहेंगे राई के दाना जिसने राई के दाने के बराबर ईमान लेकर गया इस दुनिया से 70 गुना बड़ी जन्नत मिल जाएगी और जो बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बयान छोटा करते थे लेकिन वो अमल वाला होता था ये हमारा मिजाज बिगड़ गया हम मौलवियों का मिजाज भी बिगड़ गया है और आवाम का मिजाज भी बिगड़ गया है कि हम 2-2 घंटे तकरीर करते हैं पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है ये मैंने नोट में लिखा था कि मुझे बताना है और आखिर पर अर्ज करूंगा बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 कलमे हैं जो रहमान को बहुत पसंद है अल्लाह को बहुत पसंद है और ज़बान पर बहुत हल्के फुल्के कल तोड़े जाएंगे बहुत वज़नी होंगे सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी बात को 3 मरतबा फरमाया करते थे इसलिए मैंने आपको यादी के अल्फाज 3 मरतबा बताए इंशाअल्लाह याद हो गए होंगे इनको याद जरूर कर लेना चाहिए अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर।